Hello everyone. Today we'll learn about Income Tax Act. Now before learning about Income Tax Act, what is income tax? And before that also, what is a tax? So tax is an extra revenue that the government charges from an individual or a person basically, okay, for governmental expenses. For example, infrastructure and all those purposes, okay. Now you all know about tax now. So what are the types included in tax? So there are two types: direct tax, indirect tax. Direct tax is when you directly pay the tax to the government. Matlab, there is no agent in between you and the government. Okay. And indirect tax, you have someone who pays the tax on behalf of you. Okay. Now direct tax has many types. Income tax, which we are going to learn in this video. Corporate tax, मतलब जो कंपनीज वगैरह रहते हैं उनके पास से द गवर्नमेंट टेक्स टैक्स. कैपिटल गेन्स टैक्स इज बेसिकली इंक्लूडेड इन income tax only, that I will tell you. Securities transaction tax, whenever you trade in securities, that is shares, bonds and all, you incur some transactions on that. Sorry, मतलब transactions होते हैं, incur नहीं होता है. You come across some transactions, so वो transactions पे whenever you earn something, you have to pay tax on that. Okay. Dividend distribution tax, whenever you earn a dividend from a company, whenever you are investing in some shares and all, you earn dividend, बराबर. तो वो dividend पे you have to pay the tax. Okay. And wealth tax is your gold and all that on that. Okay. Now there is one more type which is not written here. It's property tax. So property tax is house, लैंड एक्सेट्रा, उस पे आप लोग को टैक्स भरना पड़ता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट घरपट्टी ना, जो ग्राम पंचायत वगैरह देते हैं, दैट घरपट्टी इज द प्रॉपर्टी टैक्स. ओके. नाउ indirect tax was it comprised of service tax, value added tax. Okay. Now these all taxes are converted into, like, they are removed and a new tax is brought up, which is known as goods and service tax, which was introduced on 4th July 2017. Okay. तो सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स ये पहले थे, अभी नहीं है. सर्विस टैक्स क्या है? What is the service? Whenever you go in a restaurant, you go in a parlor, salon, whatever, तो तब भी आप लोग के पास से टैक्स लेते हैं, वो सर्विस देते हैं ना आप लोग को. ओके. तो वो सर्विस पे आप लोग को जब भी टैक्स देना पड़ता है, उसको सर्विस टैक्स बोल देते हैं. ओके. वैल्यू एडेड टैक्स मतलब जो आप लोग डीमार्ट में जाते थे, उधर वैट लिखा रहता था बिल पे, याद है? तो दैट वैट इज बेसिकली एन एब्रीविएशन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स. तो ये दोनों निकाल के गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ही टैक्स लाया है. इसमें दीज टू टैक्सेस आर ऑलरेडी देयर. ओके. तो ये दो टैक्सेस सेपरेटली दे डोंट एग्जिस्ट नाउ. Entertainment tax, whenever you go in a cinema hall and all, that time tax used to be taken. अभी वो भी GST में ही आता है सब कुछ. Okay. Goods and service tax, which we'll learn in the next video. Stamp duty, if you want any documentations or anything, तो उस पे stamp duty वगैरह लेते हैं. रेवेन्यू जनरेशन भी वैसा ही है इनकम टैक्स की तरह, बट दिस यू डोंट पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यू हैव सम एजेंट बिटवीन यू. नाउ इनकम टैक्स क्या है? सो इनकम टैक्स इज व्हेनेवर यू अर्न समथिंग, इनकम. ओके. तो उस पे टैक्स लेता है ना गवर्नमेंट, तभी उसको इनकम टैक्स बोलते हैं. सो दिस वन इज डायरेक्ट टैक्स बिकॉज यू डायरेक्टली पे इट टू द गवर्नमेंट. ओके. देयर इज नो एजेंट बिटवीन यू. ओके. तो you मतलब not you, your parents must be going there in a CA's office, and CO को बोलते रहते हैं ना, मुझे ITR करना है, इनकम टैक्स रिटर्न करना है, फाइल. तो दैट फाइलिंग इज देयर ना, दैट इनकम टैक्स वो CA के पास जाके गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना पड़ता है. वो समझ में आ रहा है? मतलब तुम लोग गवर्नमेंट के CA के पास जाते हो बिकॉज यू डोंट नो द प्रोसेस एंड ऑल, तो वो तुम्हारे बिहाफ पे CA करता है, बट द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज डन बाय यू ओनली डायरेक्टली. ओके. CA सिर्फ आप लोग को वो प्रोसेस करने में हेल्प करता है.
तो सीए को एजेंट नहीं बोल सकते हम लोग, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज, नहीं तो बोले कि सीए भी एजेंट हो गया ना, हम लोग सीए के पास जाते हैं, उधर से पैसा देते हैं हम लोग, ओके। CA is not an agent. CA is just an helper for you, assistant for you, who uh, who just does the process. पैसा तो आप ही दे रहे हो डायरेक्टली गवर्नमेंट को, ओके। इफ यू नो हाउ द प्रोसेस गोज ऑन, तो आप लोग भी कर सकते हो, सीए के पास जाने की भी जरूरत नहीं है इन दैट केस। नाउ इनकम टैक्स भी पता चल गया, अभी इनकम टैक्स कैसे आया था, कब आया था। So there are two acts basically. Income tax rules 1962 में आया था, which we are going to learn in this video. Income tax act is also there, which had come in 1961. Okay, since that was insufficient, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रूल्स का बिल पास किया इन 1962. ओके, तो जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, that we are going to study according to income tax rules. Okay, now इसमें बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, ओके। कौन सा भी एक्ट उठाओ उसमें सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन नहीं रहेगा तो आर्टिकल्स रहते हैं। तो सेक्शंस में सेक्शन 1 इज देयर, ऑलवेज ऑलवेज कौन सा भी एक्ट उठाओ, ये 2 सेक्शन जो अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये सब में कॉमन रहता है, ओके। सेक्शन 1 जो रहता है ना, वो एक्ट किधर किधर एप्लीकेबल है, दैट इज मेंशन इन दैट सेक्शन 1, ओके। कौन सा भी एक्ट उठाओ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी उठाओगे ना तो भी उसमें भी वैसा ही रहता है। सेक्शन 1, where the act is applicable, in which states it's applicable, okay। So income tax rules is applicable in Jammu and Kashmir, okay। ऐसा लिखा रहता है ना, all the states except Jammu and Kashmir, इधर एक्सेप्ट नहीं है, इधर जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड है। नाउ सेक्शन 2 भी कॉमन होता है फॉर एवरी एक्ट, इन दैट इट्स द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द एक्ट आर एक्सप्लेन्ड, लीगल लैंग्वेज में रहता है, अपने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लैंग्वेज में नहीं रहता है वो, ओके, लीगल लैंग्वेज। बट आई प्रॉमिस आप लोग ये उठा के पढ़ोगे ना, तो दिस वन हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन वेरी मच फेमिलियर लैंग्वेज, ओके। मतलब ऐसा हाई लैंग्वेज ऐसा कुछ यूज नहीं किया है, मुझे भी समझ में आया है वो लैंग्वेज। नाउ आप लोग को सेक्शन 1 सेक्शन 2 भी पता चला। नाउ आई विल टेल यू अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, बिकॉज देन आप लोग को टीवाई में बहुत फिर ये होगा, हम लोग को सब पता है तो आप लोग टीवाई में पढ़ाई नहीं करोगे, तो मुझे पाप नहीं चाहिए वो, इसलिए। नाउ आई विल टेल यू जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। सेक्शन 231, ओके। तो सेक्शन 2 में देयर आर मेनी नंबर्स, सेक्शन 2(1), सेक्शन 2(2), ऐसा बहुत कुछ है, ओके। वैसे करके आप लोग सेक्शन 2 में 31 नंबर ढूंढोगे ना, तो आप लोग को पर्सन्स का डेफिनेशन मिलेगा, ओके। तो पर्सन्स में देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स डिस्क्राइब्ड इन दैट, मतलब ये जो 7 लोग हैं ना, दे आर बीन डिस्क्राइब्ड एज पर्सन्स इन इनकम टैक्स रूल्स। तो ये 7 पर्सन्स के पास से गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज करेगा, ओके। नाउ हु आर दिस पर्सन्स? फर्स्ट वन इज एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को क्या लिखा है? और नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब आई, यू, एवरीवन, ओके। वी आर बायोलॉजिकली एग्जिस्टिंग, ओके। तो हम लोग नेचुरल पर्सन है, वी आर नोन एज इंडिविजुअल, सो हम लोग के पास से गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगा। सेकेंड वन इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज अ बिजनेस विच इज रन बाय हिंदू फैमिलीज, ओके। अभी आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन मच डिटेल, इफ यू आर स्टडिंग SP, SP में आप लोग को सब होता है, ओके। थर्ड टाइप है कंपनी। कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनीज रहते हैं, टाटा, रिलायंस, ऑल दैट, ओके। उनके पास से गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगा। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म मतलब मैं और मेरे दोस्त सब हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, हम लोग चलो कल से एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें हम सब साथ में हम लोग बिजनेस कंडक्ट करेंगे, जो भी पैसा मिलेगा वो हम लोग सब लोग एक दूसरे में बांट देंगे, ओके। सो दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म। नाउ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? इफ यू आर अ महाराष्ट्रियन, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आप लोग को पता रहेगा, चितळे बंधु बाकरवड़ी कभी खाई रहेगी। सो दोज ब्रदर्स आर देयर ना, दे आर रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म, ओके। तो वो पार्टनरशिप फर्म में जो भी वो लोग पैसा कमाएंगे ना, वो सब ब्रदर्स है ना, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इन बिटवीन देम, ओके। सो दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म।
Then there is AOP, that is Association of Persons, and BOI, that is Body of Individuals. So what is an AOP? AOP का फुल फॉर्म है Association of Persons, as I said. तो पर्सन्स क्या है, ये जो 7 पीपल है ना, ये जो 7 पर्सन्स है ना, ये 7 पर्सन्स का मिक्स होके जो ग्रुप बनाएंगे वो लोग और बिजनेस चलाएंगे, उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बोलेंगे. ओके, तो इनके पास से गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगा. और बीओआई में क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल्स, एंड इंडिविजुअल जो है ना, मतलब हम लोग, सब लोग, हम लोग जब भी साथ में आके बिजनेस कंडक्ट करेंगे तभी हम लोग को बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज बीओआई. हम लोग के पास से भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगा. व्हाट इज द सिक्स्थ वन? अ लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी मतलब जो हम लोग का इधर जो अथॉरिटीज रहते हैं, हमारे इधर ग्राम पंचायत है, कुछ लोग के इधर म्यूनसिपल रहता है, म्यूनसिपल ऑफिस रहता है, तो म्यूनसिपल ऑफिस, तो ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, वो सब लोकल अथॉरिटी, उनके पास से गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगा. एंड लास्ट टाइप इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबाउ कैटेगरीज. ओके, तो वो लोग जो ये 6 कैटेगरीज में नहीं आते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द 7th कैटेगरी. ओके, तो उनके पास से भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज करेगा. नाउ हु आर दोज पीपल, पर्सन्स, सॉरी, डायटी, गॉड, चर्च, ऐसा, मतलब अगर कोई टेम्पल वगैरह होगा किसी का, तो वो टेम्पल का पैसा जो भी मिलता है, डोनेशंस वगैरह, उधर से पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को. चर्चेस रहते हैं, उधर से पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को. मॉस्क रहता है, ओके, तो वो सब, गुरुद्वार वगैरह रहता है, उधर से भी पैसा जो मिलता है उस पर भी टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स. अभी इनकम मतलब क्या है, जो मैं कमाऊंगी. ओके, तो मैं किधर से कमाती हूँ, तो वो जो है वो डिवाइड किया है गवर्नमेंट ने ये एक्ट के अंदर इन 5 कैटेगरीज. तो दैट 5 कैटेगरीज आर नेम्ड एज हेड्स. तो इनकम टैक्स के वो हेड्स कौन से हैं? फर्स्ट इज सैलरी, सेकेंड इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ इज कैपिटल गेन्स, एंड फिफ्थ इज अदर सोर्सेज. सो फर्स्ट इज सैलरी. सैलरी मतलब क्या, मैं किधर काम पे जाती हूँ, उधर से मुझे गवर्नमेंट नहीं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ उधर से मुझे सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी पे गवर्नमेंट मेरा इनकम टैक्स चार्ज करेगा. सेकेंड वन इज हाउस प्रॉपर्टी. सो मेरा जो घर है वो अगर मैं रेंट पे दूंगी तो वो रेंट पे मुझे पैसा देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा. सो दैट इज हाउस प्रॉपर्टी. थर्ड वन इज बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस मतलब ये जो मैंने बोला ना अभी, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब जो है वो बिजनेस चलाते हैं, तो उनके पास से गवर्नमेंट पैसा लेगा. ओके, प्रोफेशन मतलब मैं टीचर हूँ, टीचर के पास से, डॉक्टर है, डॉक्टर के पास से, लॉयर, लॉयर के पास से, उन सबके पास से पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स. फोर्थ वन इज कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन मतलब मैंने अगर ये मेरा घर है, ये घर समझो मेरे नाम पे है, तो मैं अगर कल को ये घर बेच देती हूँ, ओके, तो मैंने जब वो घर खरीदा था तभी से लेके मैं जब तक बेचती हूँ उस पे जो मुझे गेन हो रहा है, ओके. समझो मैंने घर 1 लाख में खरीदा था, बिकॉज इट वॉज मेनी ईयर्स बैक, ऐसा समझो, और मैं जब भी बेचती हूँ तभी मुझे 1 करोड़ मिलता है, तो मिडल में मुझे कितना प्रॉफिट कितना हो रहा है, गेन्स कितना हो रहा है, 99 लैक्स. तो 99 लैक्स पे गवर्नमेंट मेरा इनकम टैक्स चार्ज करेगा, ओके. उसको बोलेंगे कैपिटल गेन्स. एंड अदर सोर्सेस मतलब वो सोर्स इधर कैसे था, ये 6 कैटेगरीज में जो नहीं आते हैं वो 7 कैटेगरी में इंक्लूडेड थे. सेम ईयर जो ये 4 कैटेगरीज में इनकम इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज इंक्लूडेड इन 5th कैटेगरी. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मेरा प्रोविडेंट फंड है, उसमें से मुझे पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, मैं किधर गैम्बलिंग वगैरह करती हूँ उधर से मुझे पैसा मिलता है, कुछ भी, ओके. सो दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन अदर सोर्सेज. तो वो अदर सोर्सेज पे भी मुझे टैक्स लगेगा, ओके. दिस इज अंडरस्टूड. नाउ विल मूव ऑन टू अनदर पार्ट. नाउ
इस पे मुझे एग्जेम्पशंस मिलता है। अभी समझो मैं किधर तो डोनेशन कर रही हूँ, ओके, तो वो डोनेशन पे किसी को अगर पैसा लगा तो वो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करता है, ओके। तो अभी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जेम्पशन क्या है, डिडक्शन क्या है। एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन दोनों जब भी होता है तभी उस पर हम लोग को टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, ओके। द मेन डिफरेंस देयर इज एग्जेम्पशन आप लोग का मतलब टैक्सेबल जो इनकम रहता है ना उस पर नहीं आता है, ओके। गवर्नमेंट उस पर टैक्स ही नहीं लगाने वाली है, ओके। और डिडक्शन जो होता है वो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, उसमें कैलकुलेट किया जाता है। बट व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग द टैक्स तभी वो टैक्सेबल इनकम ये जो डिडक्शंस वाले जो है उस पे जो टैक्स लगने वाला है ना वो हम लोग माइनस करते हैं। एग्जेम्पशंस हम लोग इंक्लूड ही नहीं करते हैं, डिडक्शंस हम लोग इंक्लूड करके कैलकुलेशंस में इंक्लूड करके वो माइनस कर देते हैं एंड में, ओके। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो अभी सेक्शन 10 में एग्जेम्पशंस रहते हैं, ओके। तो मुझे दो एग्जेम्पशंस याद है, बाकी बहुत सारे हैं, तो उतना सेक्शन मुझे याद नहीं है, सेक्शन नंबर याद नहीं है एटलीस्ट, ओके। तो सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चरल इनकम लिखा है, मतलब मैं अगर खेती बाड़ी करती हूँ तो उधर से मुझे जो पैसे मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट है, उसमें मुझे टैक्स ही नहीं लगने वाला है, ओके। वाई? बिकॉज इट्स अ सोशल वर्क बेसिकली, ओके। अगर मैं खेती बाड़ी करूंगी नहीं तो खाना मिलेगा नहीं ना लोगों को, तो गवर्नमेंट उतना दयालु है, ओके, वो उस पर टैक्स लगाता ही नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। एंड सेकेंड वन इज प्रॉफिट्स इन पार्टनरशिप फॉर्म, ओके। तो इधर जो हमने पढ़ा किधर गया पार्टनरशिप फॉर्म, तो इस पे हम लोग को इधर जो टोटल इनकम मिलेगा ना उस पे हम लोग को गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, बट वो जो शेयर करते हैं ना हम लोग प्रॉफिट्स उस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, ओके। समझो अगर मेरा जो फॉर्म है, हम लोग 5 जन है, समझो हम लोग 5 जन का टोटल जो पार्टनरशिप फॉर्म है उस पे हम लोग को 10,000 जो मिलता है पैसा उस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा। बट कल को हम लोग वो पैसा जो 10,000 मिले हैं वो हर एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझो हम लोग 5 जन है ना, तो हर एक जन 2,000 लेगा, वो 2,000 पे टैक्स नहीं लगाएगा गवर्नमेंट, समझे क्या, ओके। सो दैट डबल कैलकुलेशन इज अवॉइडेड, दैट इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 10(2), ओके। 2 मतलब एक कैसे लिखा है 2 ब्रैकेट में 31, तो ऐसे इधर 2 लिखा है उधर 10 लिखेंगे, और 31 लिखा है उधर 2 लिखेंगे। तो सेक्शन 10 के अंदर 2 नंबर जब भी ढूंढेंगे ना आप लोग तभी आप लोग को ये शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा, ओके। तो दैट आई हैव एक्सप्लेन नाउ। सेक्शन 10 में आप लोग को एग्जेम्पशन एक्सप्लेन किया है सब लोग गवर्नमेंट ने। और चैप्टर 6, ये 6 है, रोमन नंबर में 6 लिखा रहता है वो, तो 6 जो है उसमें डिडक्शंस लिखा है। अभी डिडक्शंस मैंने बोला आप लोग को टैक्सेबल इनकम में वो डिडक्शंस किया रहता है, इंक्लूडेड किया रहता है कैलकुलेशंस में, बट जब भी आप लोग एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करते हो ना तभी वो माइनस करते हैं हम लोग, ओके। तो इसमें देयर आर वेरियस सेक्शंस, अभी ये भी बहुत सारे हैं बट आई हैव नेम्ड अ फ्यू ऑफ देम, ओके। 80C है, 80CC है, 80CCC है, ओके। तो ये सब में क्या क्या इंक्लूडेड है, LIC है, सुकन्या समृद्धि योजना है, बहुत कुछ है, प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पोस्ट ऑफिस का जो रहता है वो भी इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ओके। तो ये जो है वो सब गवर्नमेंट आप लोग के पास से पैसा नहीं लेगा, हालांकि हम लोग ये कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, बाद में माइनस करेंगे, ओके। तो गवर्नमेंट थोड़ा चैप्टर है इसमें, वो मैक्सिमम रुपीज आप लोग को 1.5 लाख रुपया डिडक्शन देता है, ज्यादा नहीं। समझो आप लोग के पास से 2 लाख रुपया आप लोग को आप लोग का है इसमें सबसे, ओके, सब में से 2 लाख रुपया मिल रहा है, पर रिटर्न मैक्सिमम लिमिट क्या है 1,50,000 है, तो आप लोग को 2 लाख नहीं डिडक्शन मिलेगा, आप लोग को 1.5 लाख डिडक्शन मिलेगा। 50,000 जो ऊपर का बचता है उस पर आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा, ओके। सेम ईयर 80C है, वो उसमें मेडिकल सब एक्सप्लेन किया है, मतलब अगर आपका मेडिक्लेम है, ओके, मेडिक्लेम नहीं है तो इंश्योरेंस रहता है, लाइफ इंश्योरेंस रहता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहता है, वो सब पे गवर्नमेंट आप लोग को डिडक्शन देता है,
ओके, तो वो सब सेक्शन 80D में डिस्क्राइब किया है। नाउ 80 उसमें आप लोग का है इफ असेसी इज हैंडीकैप्ड। ओके, असेसी मतलब कौन है? मैं टैक्स पे कर रही हूँ तो मैं असेसी रहूंगी। ओके, अगर मैं किसी के बिहाफ पे टैक्स पे कर रही हूँ, बट पे कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, बराबर, तो मैं ही असेसी हूँ। ओके, तो अगर मैं खुद एज एन एसएससी मैं खुद हैंडीकैप रहूंगी तो मुझे जो डिडक्शंस मिलेगा वो डिडक्शंस डिस्क्राइब किया है इन 80D। ओके, और 80U में जो मेरे पे डिपेंड है, समझो मैं ये केस में हम लोग मैं एसएससी नहीं लेते हैं, मैं मेरे मम्मी डैडी पे डिपेंड हूँ, तो समझो मैं मेरे एसएससी सॉरी गवर्नमेंट के एसएससी कौन हुए? मेरे मम्मी डैडी हुए, बिकॉज दे आर पेइंग द टैक्स। समझे? तो अभी उन पे डिपेंडेंट कौन है? मैं। तो इफ आई एम हैंडीकैप तो वो उस पे जो डिडक्शंस मिलेगा वो 80U में लिखा है। ओके, तो 80D में D में असेसी अगर है जो पे टैक्स करता है, टैक्स जो पे करता है, वो अगर खुद हैंडीकैप रहेगा तो 80U में डिपेंडेंट हैंडीकैप रहेगा तो। ओके, अभी ये दोनों सेक्शन सेम है, एक्चुअली सेम है, बट इसमें जो पर्सन हैंडीकैप है ना वो अलग है, उतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो रूल्स है ना, डिडक्शन जो मिल रहा है ना, वो सेम अमाउंट है, एवरीथिंग। ओके, इतना डिटेल में मत जाओ, लेकिन अगर आप लोग सच्ची में पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो फिर बोलो, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, नाउ इसमें जो रहता है टैक्स स्लैब्स रहता है, मतलब कभी भी आप लोग टैक्स पे करते हो ना, तभी आप लोग को जो अभी 10 लाख है वो 10 लाख पे पूरा ऐसा टोटल सेम रेट ऑफ टैक्स नहीं रहता है। ओके, डायरेक्ट टैक्स में ये जो इनकम टैक्स है ना उसको प्रोग्रेसिव टैक्स लिखा है, मतलब हर एक के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स लिखा है, और वो टैक्स रेट्स हर लेवल पे आपका बढ़ता है। ओके, अभी वो कैसे बढ़ता है वो मैं दिखाती हूँ। ओके, तो फिलहाल के जो रूल्स हैं उसमें 3 लाख था लास्ट ईयर तक। ओके, अभी ये ईयर 4 लाख किया है गवर्नमेंट ने ये ईयर में 4 लाख का किया है, तो 4 लाख का डिफरेंस आता है। बट लेट मी टेल यू प्रीवियस का। ओके, तो प्रीवियस ईयर में जो 3 लाख था, पहले के 3 लाख, उस पे आप लोग को नील लगता था, नील टैक्स लगता था। नील मतलब क्या है? 0 टैक्स। ओके, तो समझो मेरे पास अभी 15 लाख है, तो 15 लाख पे पहले के जो 3 लाख रहेंगे ना उस पे मुझे 0% टैक्स लगेगा। ओके, फिर जो दूसरा है 3 लाख टू 6 लाख, उस पे मुझे 5% टैक्स लगेगा। ओके, मतलब अगला 3 लाख। ओके, उस पे मुझे 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख टू 9 लाख। ओके, द थर्ड लेवल ऑफ 3 लाख, उस पे मुझे 10% लगेगा। ओके, फिर उसके बाद 12 लाख, उस पे मुझे 15 लाख लगेगा, सॉरी 15% टैक्स लगेगा। और फिर जो लास्ट का 3 लाख बचता है उसमें मुझे 20% लगेगा। और अगर मेरा 15 लाख के ऊपर अगर टैक्स जा रहा है, सॉरी इनकम जा रहा है, तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। ओके, तो इतना डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज ये सब आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। फिर से आई एम टेलिंग यू, if you want in detail, if you want to study it in detail, then you can tell me in the comment section. I will make another video. Anyways, in the future days I'm going to make a full subject का playlist. Okay, now one more thing, जब भी आप लोग टैक्स पे करते हो तभी एडिशनल टैक्स आप लोग को, सॉरी डिडक्शन मिलता है। ओके, दैट इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 16। U/S मतलब अंडर सेक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो है उस पे आप लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आप लोग को सैलरी मिलती है ना उस पे आप लोग को कितना माइनस करके टैक्स भरना पड़ता है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। प्रीवियसली 50,000 माइनस करके जो अमाउंट बचता था उस पे टैक्स पे करना पड़ता था। ओके, और फिर लास्ट ईयर से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 50,000 बढ़ा के 75,000 किया है। ओके, मतलब अभी जो आप लोग का समझो, अगर मैंने अभी 15 लाख बोला ना, तो वो 15 लाख जो है
उस पे से मेरा 75,000 माइनस हो जाएगा। ओके, बचा कितना 14,25,000। तो 14,25,000 पे मुझे टैक्स पे करना है अभी। ओके, तो इतना ही था। एंड लास्ट पॉइंट इज मुझे ITR कब तक फाइल करना रहता है, नहीं तो सब लोग सब कुछ सीख लिया और टैक्स ही नहीं फाइल किया तो उस पर पेनल्टीज लगेगा। ओके, तो उसके लिए ड्यू डेट रहता है, हर इसके लिए ड्यू डेट रहता है बराबर ना। आप लोग असाइनमेंट देते हो तो असाइनमेंट के लिए आप लोग को टीचर बोलती है लास्ट डेट। तो लास्ट डेट क्या रहती है, हर ईयर पे 31 जुलाई तक आप लोग का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना चाहिए। ओके, रिटर्न क्या होता है, बेसिकली यू हैव टू पे द टैक्स। तो वो पे कब तक करना रहता है, 31 जुलाई तक। उसके बाद इफ यू पे तो फिर आप लोग को पेनल्टीज लगता है। So that's all for today's video. Please like, share and subscribe.